इन होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। मैं उठाने वाले बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए तमाम खुद के खुदा, तेरे आगे सब हाल खुला है, जो सबकी मुरादें मालूम है, उससे कोई भेद छिपा नहीं। अपने बाजू के असर से हमारे लिखे ख्यालों को ताक कर अल्लाह के खुदा नाम की बढ़ाई करें हमारे खुदा मसीह के वसीले से। आलम बालक और खुदा का जलाल, जमीन पर उसके लोगों में सदा। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, हम खुद के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते, तेरे जलाल के तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदा यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, जो गुनाह उठाने जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बाप के साथ खुदा बाप के जलाल में आ रहा है। ऐ कुद्दूस खुदा, कुद्दूस कादिर, कुद्दूस बेफानी, हम पर रहम कर। हम बैठ जाएंगे। Let's bow our head in prayer. हम दुआ में सरों को झुकाएंगे। ये तस्वीर के बाद के 16वें तुम्हारी कालिक खुदावंद तुम्हारे साथ हो। ऐ खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरी दायमी शफकत तेरी कलीसिया को पाक साफ करे और बचाए। और चूंकि मैं तेरी कुमुल बगैर सलामती से नहीं रह सकती, अपने मेहर मदद से हमेशा उसकी हिफाजत कर। खुदा मसीह के वसीले से। The first reading is from the book of Exodus, chapter 16, verses 2 to 15. The book of Exodus, chapter 16, verses 2 to 15. The whole congregation of the Israelites complained against Moses and Aaron in the wilderness. The Israelites said to them, "If only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots and ate our fill of the bread. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." And the Lord said to Moses, "I am going to rain bread from heaven for you, and each day people shall go out and gather enough for that day. In that way I will test them, whether they will follow my instruction or not. On the 6th day, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather on the other days." So Moses and Aaron said to all the Israelites, "In the evening you shall know that it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. And in the morning you shall see the glory of the Lord, because he has heard your complaining against the Lord. For what are we that you complain against us?" And Moses said, "When the Lord gives you meat to eat in the evening, and your fill of bread in the morning, because the Lord has heard the complaining that you utter against him. What are we? Your complaining is not against us, but against the Lord." Then Moses said to Aaron, "Say to the whole congregation of the Israelites, draw near to the Lord, for he has heard your complaining." And as Aaron spoke to the whole congregation of the Israelites, they looked toward the wilderness, and the glory of the Lord appeared in the cloud. The Lord spoke to Moses and said, "I have heard the complaining of the Israelites. Say to them, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall have your fill of bread. Then you shall know that I am the Lord your God." In the evening quails came up and covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. When the layer of dew lifted, there on the surface of the wilderness was a fine flaky substance, and as fine as frost on the ground. When the Israelites saw it, they said to one another, "What is it?" For they did not know what it was. Moses said to them, "It is the bread that the Lord has given you to eat." This is the word of the Lord. Thanks be to God.
We shall now read the Psalms, which is Psalm 105, and we will read this in parts. Psalm 105, verses 1 through 6, then 37 to 45. Psalm 105, verses 1 through 6. Give thanks to the Lord and call upon his name. Make known his deeds among the peoples. उसकी तारीफ करवाओ, उसकी मददसारी करो, उसके तमाम अमूल्य चर्चा करो. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. सलाम उसकी कुव्वत के तारीफ हो, हमेशा उसके दीदार के तारीफ रहो. Remember the marvels he has done, his wonders and the judgments of his mouth. आए उसके बंदे अब्राहम की नस्ल, आए दुनिया में उसके बंदी दो. We will now read verses 37 to 45. Verse 37. He led out his people with silver and gold. In all their tribes there was not one that stumbled. उसने आदम ने सागर होने के लिए ठहरा दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी. He spread out a cloud for a covering and a fire to give light in the night season. He opened the rock and water flowed, so the river ran in the dry places. So he led forth his people with gladness, his chosen with shouts of joy. That they might keep his statutes and observe his laws. Hallelujah. This is the word of the Lord. The second reading is from Philippians chapter 1, verses 21 to 30. Philippians chapter 1, verses 21 to 30. To me, living is Christ and dying is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, and I do not know which I prefer. I am hard-pressed between the two. My desire is to depart and to be with Christ, for that is far better. But to remain in the flesh is more necessary for you. Since I am convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in faith, so that I may share abundantly in your boasting in Christ Jesus when I come to you again. Only live your life in a manner worthy of the gospel of Christ, so that, whether I come and see you, or am absent and hear about you, I will know that you are standing firm in one spirit, striving side by side with one mind for the faith of the gospel, and are in no way intimidated by your opponents. For them this is evidence of their destruction, but of your salvation. And this is God's doing, for he has graciously granted you privilege not only of believing in Christ, but of suffering for him as well, since you are having the same struggle that you saw I had, and now hear that I still have. This is the word of the Lord. Thank you, God. इंजील में सब पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 16 तक. Gospel of Matthew chapter 20 from verses 1 to 16. स्वर्ग का राज किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए. और उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा. फिर पहले एक दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में खड़ा देखा. तो उसने कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ, जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा. सो वो भी गए. फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे. फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे. उन्होंने उससे कहा इसलिए किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया. उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ. सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा
मजदूरों को बुलाकर पिछलों से पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो जब आए तो जो घंटा भर दिन में रहे लगाए गए थे उन्हें 1 दिनार मिला, और जो पहले आए उनने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे बृहस्पति से उड़ाकर कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। उसमें से एक ने उसको उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या मैं तुझे 1 दिनार पर लाठा लाया तो उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना मैं तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दे दूं। क्या उचित नहीं कि अपने बाल से जो चाहे जो करूं सो करूं, कि तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है। इसी से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। ये मसीह की इंजील है। खुदावंद शुदा ने आज की शाम के लिए कि हम खुदा घर मौजूद हैं, इसके पहले कि हम खुदावंद पर के वचन पर ध्यान दें, अपने सिरों को दुआ में झुकाएं। लेट अस प्रे। खुदावंद शुदा ने शाम के लिए हम तेरी हैकल में है बाप, तूने मौका दिया खुदावंद तेरे घर में आ सके जबकि मुद्दत से हम ना आ पाए। पर खुदावंद जब मौका मिलता है उसके बाद भी लोगों में शायद डर है या आलस है। हम आपसे मानो तो हमारे साथ हो, हमारे लोगों को बरकत दे, जागृत कर। इस शाम में तो हम बोल और बातचीत कर। हम तमाम शैतानी ताकत के नाम में बांध कर बाप मांगते हैं जो डेरा हमारे बीच में आया खुदावंद मुझे सलीब पीछे खुदावंद मसीह के वसीले से आमीन। शायद हम पिछले हफ्ते नहीं थे कुछ, तो जो विषय हमारा ध्यान दे रहे थे हमने यूहन्ना की इंजील के 14 बाब को लिया था और वहां पर खुदावंद से कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। और मैंने समझाने की कोशिश की थी घबराने के समान बहुत है। चाहे कोई किसी युग में रहा उसके लिए परेशानियां थी, और हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी परेशानियां बहुत थी, हमारे अपने भाई बहन उनकी परेशानियां थी, हमारे रिश्तेदारों की परेशानियां थी, हमारे पूर्वजों की परेशानियां थी, और पूर्वज को देखो तो अदन के बाग में जाएं तो उनकी परेशानी थी, और सबसे ऊपर जाएं तो खुदा के सामने ये परेशानी आई कि उसने इंसान को बनाया अपने प्यार में होकर, और इंसान ने वो किया जो वो चाहता था। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि परेशानियां बहुत हैं। मसीह के शागिर्दों को परेशानियां थी। जब वो जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि वो कहने लगे, जब वो उसने कहने लगे चलो हम यरूशलेम चले, तो शागिर्द कहते हैं चलो हम भी जाए साथ मरने के लिए। वो परेशान थे, उसकी बातों को सुन के वो कहते ऐसा प्रचार कौन सुन सकेगा, तो उनकी परेशानियां थी। अब आज भी हम परेशानी के शिकार हैं, और आज तमाम मुल्क परेशानी का। ये कोविड तो आज की बात है, पर इसके पहले भी हम लोग परेशान रहते हैं अपने जॉब की तरफ से, बच्चों की तरफ से, फाइनेंशियली, फिजिकली कुछ तो दिक्कतें हैं। अभी पीछे ऋषिवा के भाई की डेथ हो गई, और ऐसा कुछ गुमान नहीं था, पर एकदम से खबर आई और ये हो गया। तो ये दिक्कतें चलती रहती लाइफ में, और सवाल ये उठता है कि हल क्या है। कलाम में जो लिखा जो आयत कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। तो खुदा जानता है कि हमारे दिल घबराते हैं, हम परेशान होते हैं, हम इन समस्या का शिकार होते हैं। तो वो कहता तुम्हारा दिल ना घबराए, और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ? हाँ, तो सारा सार उसी आयत के अंदर है। ये नहीं कि अच्छा आगे आप जाए तो कहता मेरे बाप मेरे मौजूद जगह है और ना होते बताया था, वो सब समझाता है और जानता है हम कमजोर दिमाग के लोग हैं। पर जो सारी बात का सार उसी पहली आयत में है, तुम्हारा मन ना घबराए। क्यों ना घबराए? क्योंकि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। पर हम इन वालों नहीं सोचते, हम हाँ जी काम लिखा ना घबराए, फिर आगे बढ़ते जगह बनने जा रही। जब नहीं, जवाब वहीं पर है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो। मैं हूं खुदा, मुझ में वो सामर्थ्य है, मैं तुम्हारा सब करता हूं।
हम कलाम के अंदर बार बार पढ़ते हैं किस तरह उसने बड़े बड़े मौजे बड़े काम किए और फिर वो समझाता है। अगर यूहन्ना की 16 आपके 33 में जाएं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मसीह समझाना मांग रहा है। दुख बहुत है, संसार में क्लेश है, परेशानी है, पर मैंने सब कुछ जीत चुका हूं। इस जगह तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो, मैं हूं वो। मेरे ऊपर तुम्हारा ईमान का जो तकिया है या ईमान की जो फाउंडेशन मुझसे है। घबराने के समान, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, समान बहुत से हैं, उम्मीद की एक किरण है, यीशु मसीह का था, मुझ पर विश्वास करो। तो आज जब इस दुनिया में हम चलते हैं और जीते हैं और दिक्कतों का सामना करते हैं, तो समान परेशानी के बहुत हैं, पर तरीका एक ही है, मसीह पर ईमान। तभी तक यीशु मसीह 11 चैप्टर मैथ्यू में कहता है, आए सब थके बोझ हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। है परेशानी है, थके हैं, बोझ से दबे हैं, दिक्कतों का शिकार है, तो मेरे पास आओ। तो मैं तो अपनी शांति देता हूं। तुम्हारा दिल ना करो, तुम खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो। मसीह पे ईमान की बात ही है सारी कुछ, उसके सिवा कुछ और नहीं कि हम किस तरह बच सकते, बचा सकते हैं। ज़बूर में दाऊद कहता है, साम 34:19, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता। कहता सादिक की मुसीबत, अब ये मान लेना चाहिए कि दुनिया में परेशानी बहुत है, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें कम है, नहीं। वो कहता सादिक, हिंदी में धरती में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, पर या वह उन सब से उनको निकालता है। वो उर्दू में लिखा है, सादिक की मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उनमें से रिहाई बख्शता है। तो आज घबराने के समान बहुत है, दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, पर वो कहता है तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो। मसीह वो खुदा है जिस पर ईमान से मुसीबतों से हल है। खुदा वो खुदा जो आपको किसी हाल में छोड़ता नहीं, कहीं जाता नहीं। अगर 34:20 में जाए, साम 34:20 में कहता है, वो उसकी सब हड्डियों की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूट नहीं पाती। ऐसा खुदा है जो आपकी हिफाजत जिस्मानी, रूहानी, फाइनेंशियली हर लिहाज से करता है। वो जब बेबान में उन्हें भूख लगी तो मसीह कहता उनसे, रोटी खिलाओ ने। बोला खुदा कहा इतना पैसा नहीं होगा, तो नहीं, क्या है वो है मेरे पास, खिलाओ। और वो 5000 खिलाता है। वो खुदा है, मैं वो हूं। तुम्हारा मन ना लो, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो, मैं सब कुछ कर सकता, मेरे पास सब कुछ है। बहुत सी आयतें देखने के लिए मैं पढ़ रहा था दिन में और इससे पहले भी, पर एक दो चीज़ें मैं चाहता हूँ उसका जिक्र हो, ताकि आप देखें खुदा मेरा कैसा खुदा है। अगर हम जाएं उसमें पहले राजा में सलातीन में, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं उस सारपत की विधवा, उसका बयान। और वो सारपत की विधवा है 1 किंग, उसमें हम पढ़ते हैं 17 चैप्टर में। और वहां पर क्या हुआ, अकाल पड़ गया, खाने को नहीं है। पर अगर ऐसी बात हो, खुदा के लोग क्या कैसे जिएंगे? जिसमें एक बार बहुत पहले समझाने की कोशिश की थी, अगर खुदा के लोग भूखे मर गए तो फिर कैसा खुदा? वो कहता कि वो कह रहा बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद होंगे, पर मेरे लोग भूखे नहीं मरेंगे। तो एलिया का बयान ये है कि वहां पर सारपत में अकाल पड़ा है, मेरी बरस रही, पानी नहीं आ रहा, और एलिया को वहां जाना है। और खुदा कहता है, एलिया से कहता है जा वहां पर जा, और मैंने एक विधवा को तेरे पालने का हुक्म दिया है। पढ़े कुछ में से मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, बस। अब वहां कहता कि वो कहता मैंने तुझे एक विधवा को खिलाने की अनुमति दी, आज्ञा दी है। किस जगह है ये? जहां पर अकाल पड़ा है, जहां खाने को नहीं है, जहां पानी नहीं बरस रहा। खुदा कहता है एलिया से जा, वहां जा, मैंने उसको हुक्म दिया है। वहां जो उर्दू में लिखा है, मैंने एक बेवा को
वहां हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे, तुझे पाले। है खाना तो कुछ है नहीं वहां, वो कुछ नहीं रहा, पानी नहीं हो रहा, और खुदा कहता है एलिया से कि तू जा वहां, तुझे वो पालेगी। और जब वहां पहुंचता है तो क्या देखा कि वो औरत लकड़ी बन रही है, और वो लकड़ी बनती आई तो उससे कहता है कि मुझे पानी दे, एक कपड़ा पानी पिला दे, और कह जब तू पानी लेगा तो साथ में रोटी ले आना। तो वहां पर जो उसका जवाब बड़ा से उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा के हयात की कसम, मैं सिर्फ रोटी से मुट्ठी भर आटा ही मटके में है, थोड़ा तेल कुप्पी में है, देख हम 2-1 लकड़ियां चुन रहे हैं ताकि जाकर अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, फिर हम उसे खाएं, मर जाएंगे। एलिया कहता मत डर, जैसा जैसा मैंने कहा पहले मेरे लिए कहा। और खुदा का दास कहता कि ऐसा नहीं बोल। वो कहता घर में कुछ नहीं है, 1 मुट्ठी आटा है, थोड़ा तेल है। वो कहता नहीं ऐसा नहीं बोल, जो मैं कर रहा हूं वो कर, लेके आ। पर एक शर्त थी वहां पर, वहां वो क्या वो मैं पढ़ा था, बड़ी अजीब सी बात लगी। और वहां पर वो कहता है 12वीं आयत में कहता है 1 मुट्ठी, अगर हम 12 से आगे जहां लिखा है, और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर मैं बेटे के लिए उसे बनाऊं, पकाऊं, और उसे हम खाएं, फिर मर जाएं। 13 में कहता है, एलिया कहता है मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया बनाकर मेरे पास ले आना, उसके बाद अपने बेटे। खुदा का बंदा बड़ी अजीब बात कह रहा है, जो मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आई बात। कहता रोटी बनाई ना, और आटा थोड़ा है, पहली रोटी मेरे पास आनी चाहिए, पहले खुदा को दो उसका हिस्सा, और इसके बाद तुम खाना। अब अजीब शर्त थी, कोई भी माने कि खुदावंद इतनी आटा अगर तू नहीं खा गया तो फिर हम तो रहेगा, हमारा बच्चे बढ़ जाएगा। वो कहता नहीं पहली रोटी मुझे ला के दे तू, इसके बाद तुम जाके खाना। और कलाम में लिखा है कि जब तक अकाल रहा उन्हें कमी नहीं हुई। अगर आप उसमें पढ़े, वो हिंदी में शायद वो उसका बयान करता है कि उसके खानदान खाता रहा, जब तक अकाल रहा तब तक एलिया जाने के बाद। हिंदी में देखा कुछ है वहां, चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वो और उसका स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हाँ देखो ब्लेसिंग कैसे आई, वो स्त्री और उसका घराना और हो गए रिश्तेदार लोग, उन सबके लिए खाना। इतना सा आटा था, इतना सा तेल था। खुदा के बंदे ने कहा था पहले मुझे ला के देना। जो दशमांश की बात होती है, खुदा को देने की बात वैसे ही है, जो मेरा हिस्सा यहां ला के रखो, ईमान ये होना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, मैं दूंगा। एलिया कहता कि पहले लेकर आना मुझे, और इसके बाद तो खिलाना। लिखा है कि कुनबा खाता रहा जब तक अकाल वहां रहा। खुदा आपका तभी कहता कि तुम्हारा मन ना घबराए, खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो, मैं खुदा हूं, आई एम द गॉड, आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वट एवर प्रॉब्लम, जो तुम्हारी समस्या है उनका हल मेरे पास है, मैं उसे कर सकता हूं। और खुदा ऐसे बड़े अजीब अजीब काम करता है। अगर हम उसके आगे जाएं, अगर हम दूसरी आयत में जाएं तो अगर 17 बाब के 4 में जाएं तो ये उसके बेवा के पहले का बयान है। और वहां पर वो लिखा है, अगर 17 बाब में जाएं, एलिया दर्शबी जो कि जलाद का परदेसियों में से था, अखीब से कहा, खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना ओस बढ़ेगी ना मे बरसेगी, और जब तक मैं ना कहूं। और खुदावंत का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर, और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है छुप जा, और तू उसी नाले में से पानी पिया करना। पढ़ाई करेगा हिंदी वहां, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। कौवों को हुक्म दिया है कि तू तेरी परवरिश करें। अजीब बात है, वहां वो बेवा से कहता कि उसको मैंने हुक्म दिया तेरी परवरिश करें, यहां पर कौवे को हुक्म दिया है। अगर उसमें यहां उर्दू में ऐसे लिखा 4th आयत में 17, और तू उस नाले में से पानी पीना, और मैंने कौवे को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद कलाम मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाले के पास यरदन के सामने रहने लगा। और 6ठी आयत में लिखा है,
और कौवे उसके लिए सुबह और शाम को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त आते। हिंदी में पढ़े से यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने के करीब नाले के पास जाकर छिप रहा और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। आगे कुछ दिनों बाद जब उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यस, तो मैंने ये पढ़वाया है। वहां लिखा है कि सुबह और शाम 2 टाइम क्या खाता था वो। रोटी और दूध। तो मैंने अपनी वाइफ से पढ़ाया कि इसको समझ में आना चाहिए कि दाल मत बनाया करो, सब्जी नहीं, गोश्त दोनों टाइम खाओ। तो खुदा ने कहा था, और कौवा दोनों टाइम रोटी लाता था। अजीब मसला है। खुदा ने कहा मैंने हुक्म दिया है, ये सारी मजाक की बात है ये। खुदा ने कहा हुक्म दिया कि तेरी परवरिश कौवा करेगा। भले हो सकता है खुदा के बंदे की परवरिश कौवा करे, और हाँ खुदा वो खुदा है, वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मैं कौवे सिखाऊंगा तुम्हें खिलाएगा, मैं बेवा सिखाऊंगा उसके पास कुछ ना हो, उसके बाद आटा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, पर मैं कहूंगा और वो करेगी। जिस खुदा को आप मानते हैं ना वो खुदा है। अब आज तो दुनिया ही परेशान है और हमारे लोग भी परेशान बहुत हैं। अरे हमें ना हो जाए कुछ। भैया हो जाओ, अगर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं हो खुदा करे, जिंदगी दे, संभाले। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, सारे गाने गाते खुदा के पास आसमान में जाएंगे, खुदा के घर में जाएंगे। जब जाने होता है सबकी हवा निकल गई, परेशान है कैसे हो कि हम चले आए। नहीं, खुदा ऐसे नहीं बुलाता, खुदा का अपना वक्त होता है। यानी यीशु मसीह को आने के लिखा है गलतियों का 4 बाब में और 4 आयत है गलतियों में कहता है, और जब समय पूरा हुआ तब बेटे को भेजा। समय पूरा, तो जब समय पूरा हुआ तो मुझे बुलाया वो। मेरे आने से कुछ नहीं है। अब जो आप छुप के बैठे ना, यानी जिसको जाना जाना है, अगर खुदा का हुक्म है then you have to go। बड़ी सीधी सी बात है। खुदा वो खुदा है, वो कहता है तुम्हारा मन ना घबरा, तुम खुदा पर ईमान रखते, मुझ पर ईमान रखो। आई एम द गॉड, मैं संभालता हूँ, मैं चीजों को परिवर्तित करता हूँ, चेंज करता हूँ। और तब ये वो कहता चिल्लाकर, थके दबे परेशान लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें लेके चलने को तैयार हूँ। तो आज जिस जमाने में हम हैं, परेशानी सबकी है। देयर इज नो एंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। हमारी समस्या का कोई अंत नहीं है, पर खुदा मसीह और खुदा कलाम ये कह रहा है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान रखो। मैं हूँ वो चट्टान, मैं हूँ, मेरे साथ चलो। और अगर तुम मेरे साथ हो परेशानी नहीं। चाहे तुम्हें कौवा खिलाए, चाहे बेवा खाना दे, या आसमान से आग मन्ना गिरा दे, ये उसका काम है। पर खुदा के साथ चले। अगर खुदा के साथ रहेंगे, खुदा की ब्लेसिंग हम पर है। आइए हम दुआ करें। खुदा शुदा है, तुम्हारा खुदा है, एक ऐसा खुदा जो कहता है कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो। ऐ खुदा, आज ये सच है कि हमारी परेशानी है, हम शायद उस ईमान में नहीं जो हमें होना चाहिए। हम मांगते अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, खुदा हमें वो ईमान दे, हम समझ सकें जो मेरा खुदा है तो मुझे कौवों के हाथ से टिफिन भेज सकता है। जो मेरा खुदा है, जो बेवा के पास कुछ नहीं, वो मुझे खिला सकती है, उसके हाथ में ताकत। मेरा खुदा जो 5 रोटी से 5000 खिलाता है। बाप हम सबको ईमान दे, तुम्हारा मन ना घबराए, तो खुदा पर ईमान, मुझ पर ईमान रखो। काश हम तुझ पर ईमान रख सकें और इस दुनिया में जबकि सारी तरफ परेशानी है, हम सुकून जिंदगी जी सकें। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।